Hello everyone, welcome to my channel, that is Biology Teaching Point. Hope you all are doing best in your studies. Many of you are preparing for the board examination. So here I am with my new lecture, that is plant hormones or the phytohormones. So let's start without any delay. Today my lecture is on phytohormone or the plant hormones. So here is a small introduction about the phytohormones. Phytohormones or the plant hormones are plant growth regulators. The plant hormones are also known as phytohormones, and these are considered as the plant growth regulators. प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज समटाइम्स ये प्लांट में ग्रोथ स्टिमुलेट कराते हैं और समटाइम्स ये प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट भी कराते हैं. दैट इज वाई दे आर नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. Now on saying it a regulator, there will be two categories of the plant growth. Either the plant growth promoter will be there or plant growth inhibitor will be there. So phytohormones or the plant hormones are nothing else but these are the hormones or the chemical substance that are produced in the plant body and it helps in regulate the plant growth. Next point, plant growth regulators are the small chemical molecules which in low concentration help to regulate the plant growth, differentiation and development by promoting or inhibiting the growth. So these are the small chemical compounds which in low concentration help to regulate the plant growth, differentiation and development by promoting or inhibiting the growth. The term hormone was first of all used by the Baylis and the Starling in 1902. It is a very important point to remember that the term hormone was first of all used by the Baylis and Starling. I hope it is clear. Plant hormones or the phytohormone is a chemical substance other than the nutrients. It is very important point to note that these are not the nutrients. This category nutrient consists of the molecules or the biomolecules which help in building of a body. For example, fat, protein, carbohydrate. These comes under the category of nutrients but not hormone. So it is very clear to understand that hormones or the phytohormones will never come into the category of the nutrients. Nutrients की category में ये नहीं आते हैं, but they are the chemical compounds other than the nutrients, and they are produced in one particular region, and after that it will get translocated to another region to regulate the physiological reactions or metabolic process. Physiological reactions or metabolic process, it is also known as metabolism. So metabolism is nothing else but it is the sum of all the reactions that are taking place inside the living organism. For example, if we consider a plant as an example, then the photosynthesis or the respiration which take place in the plant is known as metabolism or the metabolic reactions. So plant hormones or the phytohormone is a chemical substance other than the nutrients that may translocate it to another region to regulate the physiological reactions or metabolic processes. They are produced in very low concentration. We have already studied. Phytohormones are classified in two categories. Number one is plant growth promoter and number two is the plant growth inhibitor. By saying promoter, that means it will help in development of the plant growth, and by saying it as inhibitor, it will somehow inhibit the growth of the plant. Now we will see in the next slides. Here is a small flow chart about the plant hormone categories. The plant hormone is categorized into two groups. Number one is plant growth promoter and number two is plant growth inhibitor. So there are total 5 hormones जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ये 5 hormones. Number one is auxin, cytokinin, gibberellin. ये तीनों के तीनों प्लांट ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में आता है इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड. ये आपको लर्न करना पड़ेगा कि प्लांट ग्रोथ जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये दो पार्ट में क्लासिफाई होते हैं. नंबर वन ग्रोथ प्रमोटर और नंबर टू ग्रोथ इनहिबिटर. अगर हम ग्रोथ प्रमोटर की बात करते हैं तो इसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स आते हैं. अगर हम इनहिबिटर की बात करते हैं तो इसमें इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड आता है. आई होप अभी तक स्लाइड सारी क्लियर होंगी आपको. सो दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड.
Growth promoting activities. If I am saying that the growth promoting activities are taking place inside the plant, that means cell division is will be there, cell elongation will be there, growth of stem will be there, leaves and other parts of the plant. Now, cell division means suppose it is the parent cell, it will get divided to form two new cell. This is the example of cell division. And if I am saying that there will be cell elongation, that means this is the cell and after that it will get elongated, right? So size of the cell will get change. So this is known as cell elongation. अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, यानी कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा, देन इट इज नोन एज सेल डिवीजन. और अगर हम सेल एलोंगेशन की बात करें तो साइज ऑफ द सेल विल गेट इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग दैट फर्टिलाइजेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उसके बाद जाइगोट बनता है. जाइगोट के अंदर बहुत सारे सेल का डिवीजन होगा, डिवीजन होने के बाद एक एम्ब्रियो फॉर्म होगा. तो यहाँ पर सेल डिवीजन का प्रोसेस चल रहा है. बट अगर प्लांट की हाइट इंक्रीज कर रही है, प्लांट की लेंथ इंक्रीज कर रही है, तो वहाँ पे सेल डिवीजन के साथ साथ सेल एलोंगेशन का भी प्रोसेस हो रहा होगा. ग्रोथ ऑफ द स्टेम, लीव्स, ये सारी एक्टिविटीज़ कैसी हैं? ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़ हैं. एंड इफ आई एम सेइंग दैट ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, दे आर कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरी, plant growth promoter and inhibitor. So these activities will take place with the help of plant growth promoters and these activities will take place with the help of plant growth inhibitors. तो ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज़ क्या क्या? अब हम सोच सकते हैं कि प्लांट में ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जो उसको ग्रोथ को इनहिबिट कराएंगी. तो नंबर वन इज सेनेसेंस. सेनेसेंस का मतलब होता है एजिंग. एजिंग यानी कि एज का बढ़ना, दैट इज नोन एज सेनेसेंस. प्लांट पहले छोटा होता है, फिर मेच्योर होता है, फिर वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर हो जाएगा, आफ्टर दैट उसकी डेथ की तरफ हो जाएगा, तो दैट इज नोन एज सेनेसेंस, एजिंग. तो ये एजिंग होना भी किसी हार्मोन की वजह से हो रहा है पॉसिबल. तो दिस इज द ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज. नंबर टू, एब्सेशन. हम लोग हमेशा देखते हैं कि प्लांट में लीव्स फॉल करती हैं, गिर जाती हैं, लीव्स गिर जाती हैं, फ्रूट्स गिर जाते हैं, कभी कभी बर्ड्स भी गिर जाते हैं. तो दैट इज नोन एज एब्सेशन. Falling of leaves, buds, flowers, these are also because of some inhibiting hormones. And third one is dormancy. Dormancy means होता है inactive state of the seeds and buds. कभी कभी हमने देखा सीड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द इनएक्टिव स्टेट ऑफ द सीड्स, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डॉर्मेंसी. तो दीज थ्री एक्टिविटीज आर देयर that are growth inhibiting activities and it will take place by the help of growth inhibitors, that are the two hormones ethylene and abscisic acid. So senescence, abscission and dormancy, these three phenomena comes under the growth inhibiting activities. I think now it is very clear. So it is the next slide. Plant growth promoter perform the growth promoting activities. सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. दे आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स. प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स नॉर्मली इंड्यूस द एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी. ये एब्सिशन यानी कि फॉलिंग ऑफ द लीफ और बड इसको कराता है, प्लस डॉर्मेंसी यानी कि इनएक्टिव स्टेट लेकर के आएगा सीड में और बड्स में. दे आर एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन. लेट्स स्टडी ईच हार्मोन इन डिटेल वन बाय वन. नंबर वन, फर्स्ट हार्मोन इज ऑक्सिन. The word auxin comes from the Greek word auxin, which means to grow. Auxin word सबसे पहले ग्रीक वर्ड से आया जिसका नाम है ऑक्सीन, और इसका मतलब होता है टू ग्रो. इसका मतलब ही है टू ग्रो, इसका मतलब ये हेल्प करेगा इन द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट. It is the first plant hormone to be discovered. It is very important point to note that the first plant hormone which was discovered is auxin. However, the discovery of every plant hormone is accidental. It is capable of promoting cell elongation, especially of the shoot. यानी कि शूट में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स की लेंथ को इंक्रीज कराने का काम ऑक्सिन का होता है. यहाँ पे सेल की नंबर नहीं इंक्रीज हो रहा है. ये ध्यान रखने वाली बात है कि सेल डिवीजन जब हम बात करेंगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेल एलोंगेशन देन उसका नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, उसकी लेंथ इंक्रीज होगी. ऑक्सिन इनहिबिट द रूट ग्रोथ. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ऑक्सिन का अमाउंट ज़्यादा होता है, ऑक्सिन के अमाउंट पे डिपेंड करता है कि रूट की ग्रोथ होनी है या नहीं होनी है. ठीक है, तो ऑक्सिन इनहिबिट द रूट ग्रोथ.
It is synthesized at the apex, that's why it has to be transported downwards. और ये सबसे important point है कि ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस होता है वो एपेक्स पे होता है. एपेक्स का मतलब क्या है? सपोज करिए कि ये प्लांट है, यहाँ से ऐसे लीफ निकली, तो ये इसका एपेक्स पॉइंट है. एपेक्स यानी टॉप. तो इस टॉप पॉइंट पर ही ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है. अगर यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है तो उसको फिर ट्रांसपोर्ट होकर के नीचे आना पड़ता है. राइट. It is synthesized at the apex, that's why apex का मतलब top, that's why it has to be transported downwards. अब जब ये top पर form हो रहा है और downwards इसका translocation हो रहा है, that is why it is said that its transportation is unidirectional. Unidirectional यानी कि ये apex पे form होगा और बाकी नीचे ये translocate हो जाएगा. I think it is very easy and simple. The word auxin comes from the auxine, which means to grow. It was the first plant hormone to be discovered. ये कैपेबल होता है प्रमोट करने का सेल एलोंगेशन, यानी कि ये सेल के नंबर को इंक्रीज नहीं कराएगा बट सेल के लेंथ को इंक्रीज कराता है. ये इनहिबिट करता है रूट की ग्रोथ को. प्रोड्यूस होगा एट द एपेक्स और उसके बाद ट्रांसलोकेट हो जाएगा टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स. यूनिडायरेक्शनल इसकी ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. नाउ दिस इज द वेरी स्पेशल फिनोमिना related to the auxin and very interesting also it is apical dominance. It is known as apical dominance. इसमें होता है क्या है कि सपोज करिए अगर एक प्लांट है, प्लांट के टॉप पर यहाँ एपेक्स पर क्या होगा? ऑक्सीजन का सिंथेसिस होगा. अगर हम ये टॉप वाला पोर्शन इसका प्लांट से इंटैक्ट रखें, लगा हुआ रहने दें, तो ये लेटरल बर्ड्स को ग्रो नहीं होने देता है. यानी कि अगर टॉप पर ऑक्सीजन है, इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द सेल्स. एज अ रिजल्ट द लेंथ ऑफ द प्लांट विल गेट इंक्रीजेस. यानी कि ये प्लांट ऐसे चल रहा है, यहाँ पे एपेक्स पे ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हेल्प कर रहा है प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में. इंक्रीज करता जाएगा तो लेटरल जो बर्ड्स होती हैं, लेटरल बर्ड्स का मतलब ये साइड वाली, ये साइड वाली, यहाँ पर ये मेन ब्रांच है, ये मेन स्टेम है और यहाँ से जो ये जनरेट हो रही है, दीज आर द लेटरल ब्रांचेस. ये लेटरल ब्रांचेस हैं. लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाती है जब तक एपेक्स पर एपेक्स वाला पॉइंट प्रेजेंट रहता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला पॉइंट प्रेजेंट रहता है. बट अगर हम इसके एपेक्स को रिमूव कर दें, नेक्स्ट में देखिए प्रूनिंग. प्रूनिंग यानी ऊपर से हम इसको कट कर दें. एपेक्स वाले पोर्शन को अगर हम कट कर दें तो ऑक्सीजन वाला पोर्शन रिमूव हो जाएगा. एज अ रिजल्ट जो लेटरल ब्रांचेस है दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, दे विल स्टार्ट ग्रोइंग. तो प्लांट विल बिकम लाइक दिस, बुशियर प्लांट विल बी देयर. तो ये एक्टिविटी हेल्प, आप लोगों ने देखा होगा गार्डन वगैरह में बहुत प्लांट जो होते हैं उनके अलग अलग शेप उनको बनाया जाता है ऊपर से कटिंग करके. तो जो कटिंग करने के बाद प्लांट का शेप कुछ ऐसा हो जाता है. यानी कि अगर हमने कटिंग नहीं की है तो वो प्लांट ऐसे सीधे ग्रो करता चला जाएगा लेंथ वाइज. बट अगर हम ऊपर से इसकी कटिंग कर दें लाइक दिस, तो ये प्लांट की ग्रोथ फिर कुछ ऐसी हो जाती है. दिस फिनोमिना ऑफ नॉट ग्रोइंग द लेटरल ब्रांचेस बट ओनली द मेन ब्रांच इज ग्रोइंग, दिस फिनोमिना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस. लिखा हुआ टर्मिनल बर्ड रिलीजेज ऑक्सीजन. ये टर्मिनल बर्ड है, ये टर्मिनल बर्ड होती है और ये लेटरल बर्ड्स हैं. This is the terminal bud and these are the lateral buds. तो terminal bud releases oxygen inhibiting growth of the lateral buds. जो terminal bud है ये oxygen release करता है, इसकी वजह से lateral buds grow नहीं कर पाती हैं. तो अगर हम ऊपर वाली bud को हटा दें terminal bud को, removing the terminal bud via selective pruning allows dormant lateral buds to develop. इसकी वजह से ये lateral buds ही develop करेंगी प्रोड्यूसिंग बुशियर प्लांट, और जो प्लांट होगा वो कैसा हो जाएगा? बुशियर हो जाएगा. आई थिंक इट इज क्लियर. वी विल स्टडी इट लेटर इन नेक्स्ट स्लाइड्स. दिस इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना इन केस ऑफ ऑक्सीजन. नाउ हियर लुक दैट दिस इज द टर्मिनल बड एंड इट इज इंटरनल. यहाँ पे इंटरनली सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया. सनलाइट फ्रॉम द अबव, अगर सनलाइट ऐसे अबव ऊपर से पड़ रही है तो जनरली क्या होगा? द प्लांट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इज इन इक्वल अमाउंट अराउंड द शूट. द शूट ग्रोज स्ट्रेट. अगर सनलाइट ऊपर से पड़ रही है, सपोज करो यहाँ पे सनलाइट है और सनलाइट यहाँ से ऊपर से आ रही है, तो ये जनरली क्या करेगा? टिप को यहाँ पे नॉर्मली ऑक्सीजन सब तरफ प्रोड्यूस होगा और ये टिप ऐसे ग्रो करेगी. बट अगर सनलाइट इस तरफ से आ रही है, सनलाइट फ्रॉम वन साइड, सन इरेडिकेट्स द ऑक्सीजन ऑन द सनी साइड. अब इसकी वजह से क्या होता है? अच्छा, ऑक्सीजन के साथ एक स्पेशल फिनोमिना है कि ऑक्सीजन जो है वो डार्कर रीजन में जाता है, यानी इट विल प्रोड्यूस्ड इन डार्कर साइड या मूव कर जाता है टुवर्ड्स द डार्कर साइड.
अगर सनलाइट इधर से जा रही है तो सारा का सारा ऑक्सीजन पीछे की तरफ आ जाएगा डार्कर एरिया में। यहाँ पे सनलाइट ऊपर से आ रही थी तो ऑक्सीजन पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो सब तरफ की सेल्स इक्वली इंक्रीज कर रही थी, अपनी लेंथ को बढ़ा रही थी। ऑक्सीजन का मेन फंक्शन हम पढ़ चुके हैं ना, एलोंगेशन ऑफ द सेल, सेल को एलोंगेट कराएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन एक तरफ से आ रही है। अब इस साइड से अगर ऑक्सीजन आएगा तो सारा का सनलाइट इस तरफ से अगर आएगी तो सारा का सारा ऑक्सीजन पीछे डार्कर एरिया में जाकर कलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बैक साइड की सेल्स हैं इनकी लेंथ इंक्रीज करेगी। देखें आप डायग्राम में इनकी लेंथ इंक्रीज कर रही है, बट ये फ्रंट साइड में क्योंकि ऑक्सीजन सारा का सारा बैक साइड चला गया डार्कर रीजन में, तो यहाँ पर सेल की लेंथ इंक्रीज करी बट यहाँ पे नहीं करेगी। अब जब यहाँ की सेल की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो एज अ रिजल्ट ये ऑटोमेटिकली बेंड हो जाएगा टुवर्ड्स द सनलाइट, एंड वी विल से दैट कि प्लांट की जो शूट होती है वो टुवर्ड्स द सनलाइट ग्रो करती है। तो क्यों कर रही है, इसका रीज़न है। रीज़न क्या है कि जब एक तरफ सनलाइट जिस तरफ से आती है, ऑक्सीजन उसके अपोजिट साइड जा करके स्टोर हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। तो दिस इज द रीज़न ऑफ ग्रोइंग ऑफ द टिप ऑफ एनी प्लांट और द शूट टुवर्ड्स द सनलाइट। यहाँ पे भी आप देखिए कि सीडलिंग है, इसमें क्या लाइट की डायरेक्शन इधर से दिखाई गई है और स्टेम भी टुवर्ड्स द लाइट ग्रो कर रहा है। लाइट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑक्सीजन। अब क्या होता है, ऑक्सीजन मूव अवे फ्रॉम द लाइट, ऑक्सीजन कहाँ मूव करके चला जाता है, अवे फ्रॉम द लाइट, और वो डार्क रीजन में आ जाता है। इस साइड का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से इसकी सेल्स देखो यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है, इसकी सेल्स की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और एज अ रिजल्ट ये टर्न हो जाता है टुवर्ड्स द सनलाइट। यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबके बारे में। ऑक्सीजन इज सिंथेसाइज्ड एट द डार्कर रीजन ऑफ द स्टेम and causes the elongation of the cells. As a result, more elongated cells are formed in darker region which lead to the bending of stem tips towards the light. यही हमने पढ़ा कि लाइट की वजह से ऑक्सीजन सारा का सारा डार्कर रीजन में कलेक्ट हो जाता है, प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से बैक साइड की सेल्स की लेंथ बढ़ जाएगी, एज अ रिजल्ट स्टेम की बेंडिंग हो जाती है। इट इनहिबिट द लेटरल ग्रोथ, ये भी हमने पढ़ा कि अगर ऑक्सीजन टिप पे प्रेजेंट है, शूट टिप पे, तो लेटरल बड की ग्रोथ नहीं होती है। इफ एपिकल बड इज प्रेजेंट देन लेटरल ब्रांचेस डू नॉट ग्रो प्रॉपरली एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एपिकल डोमिनेंस, और इसी फिनोमिना को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। व्हेन द एपिकल बड इज रिमूव्ड देन द लेटरल ब्रांचेस शो प्रॉपर ग्रोथ। जब एपिकल बड को रिमूव कर दिया जाता है तो लेटरल ब्रांचेस प्रॉपरली ग्रो करने लगती हैं और प्लांट कैसा हो जाता है, बुशियर हो जाता है। And this technique is used by the gardener to make the bushy plant in their gardens. I hope everything is very clear. Oxygen, now there are some learning points regarding the oxygen. It is very important for higher class students, for example masters. Oxygen is indole compounds and their derivatives. Indole compounds are the type of chemical compounds. तो ऑक्सीजन बिलोंग करता है इंडोल कंपाउंड के ग्रुप को और उसके डेरिवेटिव्स होते हैं। द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन यानी कि अगर ऑक्सीजन का जो सिंथेसिस होता है तो उससे सपोज करो कोई एक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल, उसी से नेक्स्ट मॉलिक्यूल यानी कि जो हमारा ऑक्सीजन वगैरह ये प्रोड्यूस होता है, तो ट्रिप्टोफैन इसमें प्रीकर्सर ऑक्सीजन का, ये आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन इज ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो तरह के होते हैं, यानी कि नेचुरली अकरिंग जो प्लांट के अंदर हो, और सिंथेटिक ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, किए जाते हैं। नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन इंक्लूड इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूट्रिक एसिड, इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड, फिनाइल एसिटिक एसिड. These are the short forms of their names. Synthetic oxygen include 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. In its short form, it is known as 2,4-D. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, naphthalene acetic acid, and AA. So these are the examples of the naturally occurring oxygens and synthetic oxygens. It is very important to remember these points. IBA, indole butyric acid. IBA is indole 3 butyric acid. It is a natural as well as synthetic oxygen. यानी कि कभी क्वेश्चन आता है कि नेम द ऑक्सीजन विच इज सिंथेटिक एज वेल एज नेचुरल, तो आंसर क्या होगा उसको, IBA, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड. Now there is about some information about the discovery of the oxygen. तो डिस्कवरी सबसे पहले किसने की थी, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने.
found that the coleoptile of the canary grass has a chemical which is responding to light by bending towards it. इन्होंने सबसे पहले देखा था कैनरी ग्रासेस में कि कोई केमिकल है उसके टिप पर जो हेल्प कर रहा है प्लांट को सनलाइट की तरफ ग्रो कराने में। जनरली इन्होंने क्या किया था, प्लांट यानी कि कोलियोप्टाइल का प्लांट लिया, उसकी टिप को पहले से इंटैक्ट रखा और सनलाइट पड़ने से उसकी टिप जो है यानी कि शूट का जो डेवलपमेंट ग्रोथ हुआ टुवर्ड्स द सनलाइट था। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टिप को रिमूव कर दिया, एज अ रिजल्ट उसकी ग्रोथ सनलाइट की तरफ नहीं हुई। तो इससे ये पता लगता है कि उसकी टिप ऑफ द प्लांट में यानी कि कोलियोप्टाइल टिप ऑफ द प्लांट में कोई ऐसा केमिकल है जो हेल्प करता है रिस्पॉन्डिंग टू द लाइट बाय बेंडिंग टुवर्ड्स इट, लाइट की तरफ बेंड करता है। एक और साइंटिस्ट है बेंट, इन्होंने डिस्कवर किया दैट केमिकल इज ओनली प्रेजेंट इन द टिप एंड इफ द टिप इज रिमूव्ड देन इट डज नॉट शो एनी मूवमेंट। ये चीज़ इन्होंने पता लगाई कि केमिकल जो है वो सिर्फ टिप में ही प्रेजेंट होता है और अगर समहाउ टिप को रिमूव कर दिया जाए तो ये कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है दैट बॉयसन एंड जेनसन, इन्होंने डिस्कवर किया दैट द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन ऑफ द स्टेम इज सिंथेसाइज्ड इन द डार्कर रीजन दैट इज नॉट एक्सपोज टू लाइट। इन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो केमिकल रिस्पॉन्सिबल है एलोंगेशन ऑफ द स्टेम के लिए वो सिंथेसाइज होता है डार्कर रीजन में जो लाइट की तरफ एक्सपोज नहीं होता है। तो दीज आर द लर्निंग पॉइंट्स रिगार्डिंग ऑक्सिन। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन का क्या फंक्शन है? एपिकल डोमिनेंस, प्रेजेंस ऑफ द एपिकल बड इनहिबिट द लेटरल ग्रोथ, इट इज नोन एज द एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब तक एपिकल बड प्रेजेंट रहता है तब तक लेटरल बड की ग्रोथ नहीं होती और इसी फिनोमिना को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। रिमूवल ऑफ apical bud help in the lateral growth and this technique is used by the gardener to make the plant more bushier। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कोई जब हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं तो लेटरल बड की ग्रोथ होने लगती है और इसी टेक्निक को गार्डनर यूज करते हैं ताकि प्लांट्स बुशियर बन सकें। ऑक्सिन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी विच इज द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। पार्थिनोकार्पी ऐसा फिनोमिना है जिसमें फ्रूट का प्रोडक्शन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी सिंपली फीमेल गैमीट से एग से हम डायरेक्टली डेवलप करा देते हैं कोई भी फ्रूट, उसके अंदर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होता है। तो ऑक्सिन हेल्प करता है पार्थिनोकार्पी में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट हेल्प इन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में फ्लावर्स फॉर्म कराने में हेल्प करता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हेल्प इन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन क्यूकुरबिट। कुकुरबिटा फैमिली में कुछ प्लांट्स आते हैं जैसे कुकुरबिट वगैरह ये सब आते हैं। कुकुरबिटा की जो फैमिली होती है उसमें फ्लावर्स को इंक्रीज कराने का काम ऑक्सिन का होता है। हेल्प इन फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द सनलाइट और जियोट्रोपिज्म यानी कि मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटी। तो इन दोनों फिनोमिना में ऑक्सिन का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। 2,4-D इसका फुल फॉर्म हमने पढ़ा था, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। इट इज़ यूज्ड एज हर्बिसाइड्स और द वीडीसाइड्स। ये हर्बिसाइड्स और वीडीसाइड्स के फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मालूम होना चाहिए 2,4-D के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑक्सिन। नाउ द नेक्स्ट हार्मोन दैट इज जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिक एसिड्स और द जिब्रेलिन्स आर वीकली एसिडिक इन नेचर। इनका नेचर वीक एसिड होता है, यानी कि ये वीकली एसिडिक होते हैं जिब्रेलिक एसिड, एज द नेम ऑल्सो सजेस्ट। दे आर द प्लांट हॉर्मोन्स दैट रेगुलेट वेरियस डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। ये भी प्लांट में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोसेस को रेगुलेट कराता है। दे आर द लार्जेस्ट नोन क्लासेस ऑफ द प्लांट हार्मोन। सबसे ज़्यादा जो बड़ी क्लास है प्लांट हार्मोन की वो जिब्रेलिन्स की है। बहुत वैरायटी ऑफ जिब्रेलिन्स फाउंड होते हैं, पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसकी डिस्कवरी। It was first discovered by Kurosawa in Japan during the study on fungal disease of the rice plant known as Bakane disease or the foolish seedling of rice। ये सबसे पहले कुरोसावा ने फाइंड आउट किया था, उन्होंने डिस्कवर किया था जापान में जब वो किसी फंगल डिसीज, राइस में कोई फंगल डिसीज थी उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। डिसीज का नाम था बैकाने डिसीज और द फूलिश सीडलिंग डिसीज ऑफ राइस। ये फूलिश सीडलिंग डिसीज कहलाती है राइस की, इसको बैकाने डिसीज भी कहते हैं, जो एक फंगल डिसीज है
फंगस से कॉज होती है। वी हैव टू लर्न ओनली दिस दैट कि डिस्कवर सबसे पहले कुरोसावा ने किया। कब करा उन्होंने, मतलब कैसे किया, जब वो स्टडी कर रहे थे फंगल डिसीज ऑफ राइस के बारे में। एक राइस में फंगल डिसीज होती है, दैट इज पेकैनी डिसीज और द फुलिश सीडलिंग डिसीज। कॉजेटिव फंजाई वॉज नेम्ड एज जिब्रेला फुजिकोराई। जो कॉजेटिव फंजाई था उसका नाम है जिब्रेला फुजिकोराई, दैट इज नाउ रीनेम्ड एज फ्यूजारियम फुजिकोराई। इसका नया नाम फ्यूजारियम फुजिकोराई है। इन्फेक्टेड प्लांट्स शो इंक्रीज इन लेंथ एंड द नॉर्मल प्लांट्स। जो प्लांट इस डिसीज से इन्फेक्ट हुए थे, इन्फेक्टेड प्लांट्स यानी कि जिन प्लांट्स में, राइस के जो प्लांट्स जिनको बैकेनी डिसीज हुई थी, जो इन्फेक्टेड हुए थे, उनकी वो शो कर रहे थे इंक्रीज इन लेंथ देन द नॉर्मल प्लांट्स। यानी कि जो नॉर्मल राइस के प्लांट थे, सपोज करिए कि उनकी हाइट ऐसे थी, तो जिनको जो इन्फेक्टेड प्लांट थे उनकी हाइट ज़्यादा थी। दैट मीन्स कि द प्लांट्स विच आर इन्फेक्टेड, विच वर इन्फेक्टेड, दे वर शोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ इन लेंथ देन द नॉर्मल प्लांट्स। सिंपल सी बात है कि जो प्लांट्स, ऐसे राइस के प्लांट जिसमें डिसीज कॉज हुई थी, उन प्लांट्स की हाइट नॉर्मल प्लांट से ज़्यादा थी। लेटर दिस केमिकल कंपाउंड वॉज आइसोलेटेड। बाद में इस केमिकल कंपाउंड को आइसोलेट किया गया। ये पता लगाया गया कि ऐसा कौन सा केमिकल इन्फेक्टेड प्लांट में रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो गई। तो एंड दैट केमिकल वॉज नेम्ड एज जिब्रेलिन बाय यबूता एंड सुमुकी। एक और साइंटिस्ट थे यबूता एंड सुमुकी, इन्होंने इस केमिकल का नाम जिब्रेलिन रख दिया बिकॉज इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम द जिब्रेला फुजिकोराई, इसलिए इसका नाम पड़ गया जिब्रेलिन। सो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। डिस्कवरी जिब्रेलिन की सबसे पहले डिस्कवर्ड किया कुरोसावा ने जापान में, जब वो स्टडी कर रहे थे एक फंगल डिसीज ऑफ राइस की। उस डिसीज का नाम था बैकानी डिसीज और फुलिश सीडलिंग ऑफ राइस। इसका जो कॉजेटिव फंजाई है उसको बोलते हैं जिब्रेला फुजिकोराई और इसका नया नाम है अभी फुजारियम फुजिकोराई। तो दिस इज द नेम ऑफ द फंगस। इन्फेक्टेड प्लांट्स जो थे, जिन प्लांट्स में इन्फेक्शन हुआ था, दे शोड द इंक्रीज इन लेंथ देन द नॉर्मल प्लांट्स। बाद में इस केमिकल को आइसोलेट किया गया। किसने आइसोलेट किया? यबूता और सुमुकी ने, और इसका नाम रख दिया जिब्रेलिन। नाउ आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ द फंक्शंस ऑफ द जिब्रेलिन। इट इंड्यूस इंटरनोडल एलोंगेशन। ये जनरली क्या करता है? इंटरनोड की एलोंगेशन को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द प्लांट and this is the point from where leaves originate. This is the point from where leaves originate. So this point is known as node, this point is known as node, and the region between two nodes is known as internode. It is known as internode. So it is very clear that the point from where leaf originate or the branches originate is known as node, and the distance between, the length between the two nodes is known as internode. I hope it is clear. सो इट इंड्यूस द इंटरनोडल एलोंगेशन। ये दो नोड के बीच की जो जगह होती है उसको, इसकी लेंथ को इंक्रीज कराता है। इंटरनोड इज द रीजन बिटवीन द टू नोड्स और द टू ब्रांचेस। इट हेल्प इन बोल्टिंग। बोल्टिंग इज ऑल्सो अ प्रोसेस। बोल्टिंग में क्या होता है जनरली, आगे हम आपको एक्सप्लेन कर दें। ये फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्लांट्स होते हैं इस तरह के, जिनमें इनकी जो स्टेम की लेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, यानी कि नीचे ये जड़ें होती है, रूट्स, और रूट से थोड़े ही ऊपर से ये लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी यहाँ पे स्टेम नाम की चीज़ बहुत कम होती है, स्टेम की लेंथ बहुत ही रिड्यूस्ड होती है। देयर इज द हाई रिड्यूस्ड साइज ऑफ स्टेम। जब इनके ऊपर जिब्रेलिन हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, यानी कि ये अनट्रीटेड प्लांट है, ऐसा प्लांट जिसके ऊपर जिब्रेलिन नहीं अभी यूज़ किया गया नॉर्मली, तो ये ऐसे प्लांट्स को हम रोजेट लीव्स कहते हैं या रोजेट प्लांट कहते हैं, जिसमें स्टेम की लेंथ बहुत कम होती है। दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज रोजेट प्लांट्स। अब इनमें अगर हम जिब्रेलिन का यूज़ करें तो उसके बाद ये प्लांट ऐसे दिखने लगते हैं, यानी कि ये रोजेट वाली जो लीव्स होती है इसमें से एक मेन स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है। इस तरह क्या होता है, ये लेंथ इंक्रीज हो जाती है, प्लांट की स्टेम बन जाती है उसके अंदर। दिस इज द ट्रीटेड प्लांट शोइंग बोल्टिंग। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बोल्टिंग। समझ में आ? यानी कि नॉर्मल क्या, ऐसे प्लांट नॉर्मल, फॉर एग्जाम्पल स्पिनच, पालक, पालक तो देखा ही होगा सबने। उसकी जो जड़ें होती हैं उसके जस्ट बाद से लीव्स स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि स्टेम की लेंथ बहुत कम होती है। तो अगर हम पालक में अगर हमने यूज़ किया जिब्रेलिन, थोड़ा टाइम बाद क्या होगा कि इसमें एक स्टेम की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज बोल्टिंग। Now I hope it is clear. It helps in bolting, that is elongation of the stem in rosette plants.
रोजेट प्लांट्स आर द प्लांट्स हैविंग रिड्यूस्ड स्टेम, जिसकी स्टेम काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, सच एज स्पिनच, बीटरूट, कैबेज एटसेट्रा. Gibberellins help in seed germination. It is also play a very important role in seed germination. It helps to induce vernalization. Vernalization भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है. इसमें होता है क्या, जनरली लो टेम्परेचर इज समटाइम्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स फॉर फ्लावरिंग. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर लो टेम्परेचर पर रखा जाए तो उसके अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखी जाती है. तो दिस फिनोमिना इज नोन एज वर्नलाइजेशन. सिंपली द एप्लीकेशन ऑफ द लो टेम्परेचर to some plants for flowering. To initiate flowering is known as vernalization. This low temperature requirement is replaced by the application of gibberellin. तो जनरली फंक्शन क्या हुआ जिब्रेलिन का, कुछ प्लांट्स में जिनमें वर्नलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो वर्नलाइजेशन को रिप्लेस करके हमने जिब्रेलिन का यूज कर लिया. नेक्स्ट क्या, लेंथ ऑफ द शुगर केन इज इंक्रीज्ड बाय स्प्रेइंग ऑफ जिब्रेलिन्स ऑन इट. अब यहाँ शुगर केन का एग्जाम्पल दिया है. शुगर केन इस तरह से होता है, इसमें पर्टिकुलर ऐसे नोट्स बने होते हैं और नोट्स से आपने देखा होगा छोटी छोटी रूट्स निकली होती हैं. दिस स्मॉल रूट्स आर नोन एज स्टिल्ट रूट. इनको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट्स कहते हैं. ठीक, तो दीज आर द नोड्स. ये नोड है, ये एक नोड है, इससे समझिए आप, ये नोड है और ये भी एक नोड है, और दोनों नोड के बीच की जो जगह है, जो रीजन बिटवीन द टू नोड्स इज नोन एज इंटरनोड. तो अगर हम इसके ऊपर जिब्रेलिन को अप्लाई करें, जिब्रेलिन का छिड़काव करें, तो जनरली इसकी इंटरनोड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी. आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द जिब्रेलिन दिस शुगर केन विल लुक लाइक दिस. नाउ द लेंथ ऑफ द इंटरनोड विल गेट इंक्रीज्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिन. सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू कि हो क्या रहा है जनरली यहाँ पे. यानी it helps to induce length of the sugarcane is increased by spraying of gibberellins on it. It overcomes the dormancy, that is the inactive state of bud, tuber and seed. ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना, यानी कि डोरमेंसी को इनहिबिट करता है, डोरमेंसी को ओवरकम करता है और सीड को जर्मिनेट करने में हेल्प करता है. एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं. इट इंड्यूस इंटरनोडल एलोंगेशन, यानी कि इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज करेगा. व्हाट इज इंटरनोड? इट इज द रीजन बिटवीन टू नोड्स और द टू ब्रांचेस. इट हेल्प इन बोल्टिंग. बोल्टिंग क्या है? एलोंगेशन ऑफ द स्टेम इन रोजेट प्लांट. रोजेट प्लांट मैंने आपको बताया अभी, दीज आर द प्लांट्स हैविंग रिड्यूस्ड स्टेम, जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी होती है, सच एज स्पिनच, बीटरूट एंड कैबेज. जिब्रेलिन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन. इट ऑल्सो हेल्प टू इंड्यूस वर्नलाइजेशन. वर्नलाइजेशन का सिंपल मतलब होता है लो टेम्परेचर इज समटाइम्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट फॉर फ्लावरिंग. फ्लावरिंग होने के लिए कभी कभी प्लांट को लो टेम्परेचर देना पड़ता है, और अगर हम लो टेम्परेचर नहीं दे पा रहे हैं तो जनरली व्हाट वी विल डू, वी विल स्प्रेड जिब्रेलिन्स ऑन दैट प्लांट. यानी कि इनका रिप्लेसमेंट, बट लो टेम्परेचर का रिप्लेसमेंट है जिब्रेलिन. लेंथ ऑफ द शुगर केन इज इंक्रीज्ड बाय द स्प्रेइंग ऑफ जिब्रेलिन्स ऑन इट. शुगर केन की लेंथ को बढ़ा दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिन स्प्रेस. इट ओवरकम्स द डोरमेंसी. ये डोरमेंसी को ओवरकम करता है. ये हम पढ़ चुके. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रोजेट प्लांट. रोजेट प्लांट वो होते हैं जिनमें स्टेम बहुत रिड्यूस होती है. तो ये अनट्रीटेड प्लांट है, नॉर्मल रोजेट प्लांट है. जब इसके ऊपर जिब्रेलिन का स्प्रे कर दिया जाएगा तो वो ऐसा हो जाता है, उसकी स्टेम की लेंथ बढ़ जाती है. So next, this I have already explained that the increase is the internode. For example, इस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में, फर्स्ट डायग्राम में देर इज नो इंटरनोड. कोई इंटरनोड नहीं है. हम देख रहे हैं यहाँ से ब्रांचेस निकली हुई हैं, यहाँ से लीफ निकली हुई है और बीच में कोई स्पेस खाली नहीं है. यहाँ पे लेस इंटरनोड, इंटरनोड दिख रहा है लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है. यहाँ मोर इंटरनोड. जब जिब्रेलिन स्प्रे किया गया तो इंटरनोड की लेंथ बढ़ गई. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनोडल ग्रोथ डन बाय जिब्रेलिन्स. तो इन दिस वे द लेंथ ऑफ द इंटरनोड गेट इंक्रीज. तो देखा जाए तो अगर हमने पढ़ा, सबसे पहले ऑक्सिन पढ़ा था, उसके बाद हमने जिब्रेलिन पढ़ा, तो बोथ आर हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट. ऑक्सिन भी हेल्प कर रहा है, शूट की टिप को ग्रो कराता है, और जिब्रेलिन भी हेल्प कर रहा है, इंटरनोड की लेंथ को इंक्रीज कराता है. तो बोथ आर हेल्पिंग इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द प्लांट, राइट. Now we have to study about the third hormone, that is the cytokinin. It also comes under the category of plant growth promoter.
सो साइटोकाइनिन आर द बेसिक इन नेचर, इनका नेचर क्या है, ये बेसिक होते हैं। जिब्रेलिन्स कैसे थे, एसिडिक थे। दे प्रमोट सेल डिवीजन, एज द नेम सजेस्ट साइटो मीन्स सेल, काइनिन मीन्स टू डिवाइड, so these are the hormones which help in cell division. First cytokinin was discovered by Miller et al. From degraded autoclaved herring sperm DNA. herring एक फिश का नाम है, उसके स्पर्म के डीएनए से सबसे पहले इस हार्मोन को आइसोलेट किया गया था। आइसोलेट किसने किया था, मिलर ने, मिलर और उनके साथियों ने, मिलर एट al. इट इज कॉल्ड काइनेटिन, इसको पहले क्या कहा जाता था, काइनेटिन। The first natural cytokinin was obtained from the unripe maize grains and is known as zeatin. और सबसे पहला जो नेचुरल साइटोकाइनिन लिया गया वो अनराइप मेज से, यानी भुट्टे के दानों से लिया गया, और उसका नाम था जियाटिन। These all are the points to remember only. You have to remember this point. You have to keep this point in your mind as from exam point of view. Zeatin also occurs in coconut milk. Coconut milk में भी zeatin पाया जाता है. So these are some basic points about the cytokinin and its discovery. Function of the cytokinin, इसके क्या function होते हैं? First function, very important function, it helps in cell division. Now you have to relate auxin with the cytokinin by this, that auxin help in cell elongation, it will help in increasing the length of the cell, not the number. But the cytokinin help in cell division, means now the number of the cell will get increased. For example, from development of the embryo from the zygote, that will take place with the help of cytokinin. It delay the senescence of the leaves. Senescence हमने पढ़ा था एजिंग, एजिंग का मतलब लीफ की एज हो जाएगी और लीफ फाइनली उसकी डेथ हो जाएगी, वो गिर जाएगी, प्लांट से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो सेनेसेंस ऑफ द लीफ यानी कि लीफ नॉर्मली बनी रहे ट्री पर, तो ये सेनेसेंस ऑफ लीव्स को डिले करती है, यानी उसकी एजिंग नहीं करवाएगी, एजिंग प्रोसेस में डिले होगा। लंबे टाइम तक लीफ हरी बनी रहेगी, सिंपल सा मतलब ये है कि लंबे टाइम तक लीफ जो है वो हरी ग्रीन बनी रहेगी। इट ओवरकम द डोरमेंसी, ये भी डोरमेंसी को ओवरकम करता है। इट हेल्प इन सीड जर्मिनेशन, इट इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी इन मैनी प्लांट्स, ये भी पार्थिनोकार्पी के लिए रिस्पॉन्सिबल है कुछ प्लांट्स में। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर के लिए प्लांट को रेजिस्टेंट भी बनाता है। Now the next hormone, that is ethylene. It is the gaseous hormone. Ethylene is only hormone which is found in gaseous nature, जो gaseous state में पाया जाता है। It was discovered by cousins, सबसे पहले इसको cousins ने डिस्कवर किया था। He found that the ripe oranges produce a volatile substance that hastens ripening of the unripe bananas kept nearby. क्या देखा गया, सबसे पहले कुछ ripe oranges थे, ठीक है, जो कोई ऐसे चीज़ प्रोड्यूस कर रहे थे जो हेल्प कर रहा था अनराइप बनाना को राइप करने में। यानी कि जनरली क्या था, एक तरफ राइप ऑरेंज रखे हुए थे, एक तरफ अनराइप बनाना रखे थे, और ये देखा गया कि राइप ऑरेंजेस में से कोई केमिकल रिलीज हो रहा है जो हेल्प कर रहा है इन द राइपनिंग ऑफ दैट बनानास विद द हेल्प ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफी। अब गैस क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिससे गैस को आइसोलेट कर मतलब आइसोलेट किया जाता है। आर गेन फाउंड दैट राइपनिंग कॉजिंग वोलेटाइल सब्सटेंस वॉज इथाइलिन। तो इन्होंने पता लगाया कि राइप ऑरेंजेस से जो सब्सटेंस रिलीज हो रहा था, जो गैस रिलीज हो रही थी, वो कुछ और नहीं बल्कि इथाइलिन है। इट्स प्रिकर्सर मॉलिक्यूल इज मिथियोनिन। जैसे ऑक्सीजन जो है वो ट्रिप्टोफैन से बन रहा था, उसी तरह इथाइलिन मिथियोनिन से बनता है। मिथियोनिन इज अ टाइप ऑफ अमीनो एसिड, एक तरह का अमीनो एसिड है जो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन जो डिस्कवर किया था कॉजिन्स ने सबसे पहले, और ये फाउंड किया गया कि राइप ऑरेंजेस कोई ऐसा वोलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है जो हेल्प कर रहा है इंक्रीजिंग द जो हेल्प करता है अनराइप बनानास को राइप होने में। विद द हेल्प ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी आर्गेन फाउंड दैट राइपनिंग कॉजिंग वोलेटाइल सब्सटेंस वाज इथाइलिन। इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मिथियोनिन होता है। फंक्शन ऑफ द इथाइलिन, हेल्प इन राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, increases the female flowers, causes faster abscission. अब इथाइलिन हमने कहाँ पढ़ा था, किस कैटेगरी में, इन प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में। ये फास्टर एब्सेशन कराता है, एब्सेशन यानी फॉलिंग ऑफ द लीव्स। जब लीव्स फॉल हो रही हैं तो ये ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटी तो है नहीं, इट इज द ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी। Nowadays the liquid known as ethafone is used which continuously release ethylene and help in fruit ripening.
बहुत सारे फ्रूट्स सब कच्चे तोड़ लिए जाते हैं पेड़ों से, और उसको पकने के लिए हम इथेफॉन यानी कि एक सिंथेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं, दैट इज इथेफॉन, विच कंटिन्यूसली रिलीज इथाइलिन, इथाइलिन को रिलीज करता रहता है और फ्रूट ट्रैपनिंग में हेल्प करता है. तो इथेफॉन इज द सिंथेटिक कंपाउंड. इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली क्लाइमैक्ट्रिक. Climacteric rise means sharp increase in respiration at the end of the fruit development. जब फ्रूट डेवलपमेंट होता है तो उसमें उसका रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है. ये किसकी वजह से होता है? इथाइलिन की वजह से, यानी कि इसके लिए भी इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है. क्लाइमैक्टिक फ्रूट्स आर टोमेटो, लेमन, ऑरेंजेस एक्सेट्रा. इन सब फ्रूट्स में जब इनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एट द एंड ऑफ द डेवलपमेंट इनका रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ इथाइलिन. इसको बोलते हैं क्लाइमैक्ट्रिक. This is the ripening of banana. Unripe banana, this is the ripe banana. Abscisic acid. This is the last topic we have to study in context of the phytohormones. It is also known as stress hormone. Abscisic acid को stress hormone भी कहा जाता है because it is produced at the time of stress in plants. जब plants में कभी कोई stress की condition होती है. स्ट्रेस की कंडीशन प्लांट में होने का मतलब फॉर एग्जांपल वाटर की कमी, पानी की कमी होना, या ड्रॉट की कंडीशन आना, या फ्लड की कंडीशन आना. तो दिस इज द टाइप ऑफ द स्ट्रेस इन प्लांट. ऑल्सो नोन एज डॉर्मेंट एज इट इंड्यूसेस द डॉर्मेंसी इन बड एंड सीड. अब जब प्लांट में कभी कोई स्ट्रेस की कंडीशन रहती है तो ये बड और सीड को डॉर्मेंट करा देता है, यानी उनको इनएक्टिव कर देगा ताकि वो इनएक्टिव स्टेज में पड़े रहें. इट इज माइल्ड एसिडिक इन नेचर. एब्सिसिक एसिड भी कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर. इट इज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एडिकॉट एटाल फ्रॉम कॉटन बॉल्स. ये सबसे पहले डिस्कवर किया था एडिकॉट एटाल ने, और कहाँ से डिस्कवर किया था? कॉटन बॉल्स से, रुई के पौधे से. इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम मेवालॉनिक एसिड और ज़ैंथोफिल. इसका जो प्रिकर्सर कंपाउंड मॉलिक्यूल है वो मेवालॉनिक एसिड है और ज़ैंथोफिल. ठीक है, ये ज़ैंथोफिल से एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होता है प्लांट में. तो एब्सिसिक एसिड को हम और क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन. ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस इन प्लांट. और ये हेल्प किस में करता है? इन द डॉर्मेंसी ऑफ द बड एंड सीड. इसलिए इसको हम डॉर्मेंट भी कहते हैं. माइल्ड एसिडिक होता है नेचर में. सबसे पहले आइसोलेट किया था एडिकॉट एटाल ने कॉटन बॉल में से. इसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल मेवालॉनिक एसिड या ज़ैंथोफिल होता है. एंड द फंक्शंस ऑफ द एब्सिसिक एसिड. इट कॉजेज एब्सिशन. एब्सिशन हमने पढ़ लिया है. फॉलिंग ऑफ द लीव्स. एब्सिशन में हेल्प करता है. इट इंक्रीजेज रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट टू कोल्ड एंड अदर टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. ये प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कोल्ड के लिए और दूसरे टाइप ऑफ स्ट्रेस के लिए. इट हेल्प इन सीजिंग और स्टॉपेज ऑफ कैम्बियम एक्टिविटी. कैम्बियम एक्टिविटी क्या होती है? जनरली प्लांट में जो ट्रीज होते हैं, वुडी ट्रीज होते हैं, उसमें जाइलम और फ्लोएम की लेयर इंक्रीज होती है, दैट इज नोन एज कैम्बियम एक्टिविटी. इट इंड्यूसेस डॉर्मेंसी इन बड एंड सीड. ये सीड में डॉर्मेंसी, सीड और बड में डॉर्मेंसी की कंडीशन भी लेकर के आता है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ एब्सिसिक एसिड. इसका एक मेन फंक्शन और भी है, वो यहाँ नोट कर लें आप. इट हेल्प्स इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स. स्टोमेटा को क्लोज करने में भी ये हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ वाटर स्ट्रेस, अगर प्लांट में वाटर स्ट्रेस है, वाटर स्ट्रेस यानी वी कैन से दैट वाटर की कमी है प्लांट में, तो ये स्टोमेटा को क्लोज करा देगा. क्यों? क्योंकि अगर स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा हो जाएगा, और ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा. तो वाटर की कमी होना, दैट इज नोन एज द वाटर स्ट्रेस. और उस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड रिलीज होता है और वो हेल्प कर देता है इन क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. ये पॉइंट यहाँ मिस हो गया, इसको आप नोट कर लें. So now I think every point is clear to you. So this is all about the plant hormones or the phytohormones. अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.